student, welcome all once again in my channel English Tutorial with Rachna. So dear student, in continuation of the study of parts of speech, as I have uploaded last videos based on noun, pronoun and adjective. So this video is going to be very special for you because today we shall cover two topics of parts of speech, that is verb and adverb. So before we shall start the video, I will again like to make you a request. Dear student, don't forget to press the subscribe button so that you can keep on getting the next videos on my channel. So dear student, let's start with the verb first. First of all, we shall discuss that what is a verb. So, a verb is a word that denotes an action or a state of being. So, which kind of verb? Which kind of word is verb? Verb is a kind of word that denotes, that refers to an action. Okay. So, let's understand with the help of example. He plays football. Here you can see that the word plays. What does it refer? What does it denotes? So you will say that it denotes an action, right? It's an activity, no? When you play, it's based on an activity. In the next example, we can see Mr. Gupta is a cashier. Here, can you identify what is the verb here? Which word in this sentence is a word? So is a verb. Okay. So what does it donates? It doesn't donates any action word but a state of being. So in this way, what you have come to know, that a verb is a word that donates an action or a state of being. Okay. And on this basis, it has been classified broadly in two types: principal verbs. You can also call it main verb. What can you call principal or main verb? Okay. And the other is auxiliaries. Auxiliary is what? The verb that denotes a state of being. Okay, what I told you, what auxiliary verb is, that denotes a state of being, and what main verb or principal verb is, that denotes an action. So on the basis of its function, that it does two function. At somewhere it donates some action, and at some places it donates some state of being. So on this basis, it has been classified in two types. Now we will have some more further classification of main verbs and auxiliaries also, that I shall cover in this very video. Okay. So dear student, with the help of the above example, I hope that in previous classes also you would have studied this topic. So can you identify what are the different category of this word? So in last videos also I taught you what is he. Yes, you can very easily identify. It's a pronoun. And plays, what's it? It is a verb that donates an action. And what is football? Football is the name of a thing, okay, in this word. So that is why you will call it a noun, okay. So you can very easily identify that he is a pronoun, plays is a verb, and football is a noun. In next sentence, Mr. Gupta, it is a name, so very easy to identify. It's a noun. Is what? It is verb. And is an article. In last video only I explained it. And cashier, it is again a name, that is why it is a noun. Now we have two types of we have two types of verb, that is main verb and auxiliary verbs. So first of all, we shall understand what are the two further classification of main verb, or you also call it main principal verb. So main verb, as I have already told you, that main verb is called that verb that donates some action. Okay, action word are also known as principal verb or main verb. All verbs in English language except 24 are principal verbs. Okay, so here in this example you can see Raju plays football. So here plays is a verb, and which kind of verb it is? So you will say that it is a main verb because it donates an action, plays, right? In the next sentence, Samir drinks milk. So what is verb here? Drinks is milk, and
which type of verb it is? It is main verb or principal verb, you can say, because it's explain, it generates some action. Drinking is an activity, right? That is why it will be an a main verb. Okay, let's understand further. So we have the classification of main verb, or you can also call principal verb. So in two types. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव. जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं. एक जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा जो होता है इंट्रांजिटिव. जो हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्शन को डोनेट करते हैं, उसके भी दो टाइप्स हैं बेटा. तो फर्स्ट टाइप क्या है? अ वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. तो कुछ जो मेन वर्ब होते हैं अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल है टीचर टीचेस मैथ्स. So here you can see that teaches is verb, right? Definitely you can identify, and it is an activity. Teaching is an activity, right? That is why it is a main verb. Okay, now if you have to further classify that which type of main verb it is, whether it is transitive or intransitive. So I told you for transitive there should be an object in the sentence. So what does teacher teach? Maths. Okay, so you have got an object here. So when you have got an object in the sentence, okay, with the verb, then it will be a transitive verb. क्योंकि सेंटेंस में वर्ब के साथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट भी है. ये जो आपकी जो टीचर्स है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो उसे फाइंड आउट करने के लिए आप व्हाट एंड whom से क्वेश्चन करेंगे, then you will get the answer as an object. Okay, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा. If you ask question by what and whom and you get any answer, then object is there. If you don't get any answer, then object is not there in a sentence. Clear, student? This is how you can say that in this sentence there is an object, and that is maths, and that is why the verb teaches is what? It is a transitive verb. Again, one more example. Rohi draws a picture. You can very easily ask, what does Rohi draw? A picture, right? That is why it is again a transitive verb. What is intransitive? Very simple. A verb, a main verb that doesn't take any object with it, that is called as intransitive verb. Right, dear student? In this example, you can see birds fly in the sky. Now, if you ask a question, what does bird fly? What do bird fly? Do you get any answer? No. आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा. That is why which type of word it is? It is intransitive verb. आप यहाँ पे where से क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा. Where do birds fly? Then you will get the answer that in the sky. Okay? इसीलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. What और whom से क्वेश्चन करने पे आंसर नहीं मिल रहा है. Is it clear? दैट इज़ वाई इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो क्या डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में? कि जो मेन वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव कहलाती है, और जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं. और ऑब्जेक्ट को पहचाना बहुत सिंपल है. आप व्हाट और हुम से क्वेश्चन करके पूछोगे, आपको मिल जाएगा तो है ऑब्जेक्ट, नहीं मिला आंसर तो नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वर्ब का. So next classification of verb is, as I told you, that a verb that states some state of being, that donates some state of being, जो किसी दशा या अवस्था को व्यक्त करता है, न कि किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को नहीं डोनेट्स करता है. ऐसे वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. वर्ब्स दैट ईदर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टेंस और इट्स मूड. तो हेल्पिंग वर्ब करता क्या है? ये हेल्प करता है किसी टेंस के फॉर्मेशन में. मतलब आप टेंसेस तो पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में भी, और नहीं पढ़े होंगे देन डू नॉट वरी, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज़ वेन एवर आई विल मेक, सो आई विल मेक एनी वीडियो बेस्ड ऑन टेंस आल्सो. ओके, सो टेंस क्या होता है? जो कि मूड को या फिर किसी कॉल को, किसी टाइम को डोनेट करता है. तो उसे बताने के लिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और ऐसे वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. जैसे यहाँ पे सूरज इज़ एन इंजीनियर, और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये जान पा रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है. ओके, वर्कर्स हैव डन देयर वर्क.
अब ये हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी मदद से हम ये जान पा रहे हैं कि वर्क जो है फिनिश हो गया है, लेकिन वो ज़्यादा देर पहले नहीं, अभी अभी फिनिश हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस डोनेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डज हेल्पिंग वर्ब डू, देन यू विल स्टेट दैट इट डोनेट सम स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी अवस्था या दशा को व्यक्त करता है, और ये टेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके नाउ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बताया, एक जो होता है ऑक्सिलरीज होता है, सेकेंड वन जो है मॉडल्स होते हैं। तो चलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझते हैं। वर्ब्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टेंस आर मूड आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने अभी बताया हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या करता है, वो मूड को डोनेट नहीं करता है, बल्कि टेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जैसे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास। पहला जो है बी का फॉर्म है, जिसमें आपका है बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये सब हमारे बी के फॉर्म्स हैं। किसके फॉर्म हैं, बी के फॉर्म्स हैं। सेकेंड जो है हमारा डू का फॉर्म है, डू, डज, डिड, ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। हैव, हैज़, हैड, ये भी क्या है, ऑक्सिलरी कहलाते हैं, ये हैव के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है शैल एंड विल, ये भी हमारे टेंस के फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। ओके तो ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब या यू कैन कॉल इट ऑक्सिलरीज, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, आप टेंसेस में यूज़ करते हैं इनका। और जो नेक्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब का वो है मॉडल्स। ओके तो मॉडल्स क्या करते हैं, they helps to denote the mode of an action or the main verbs are called modal verbs। ऐसे जो verb होते हैं जो किसी एक्शन के जो मेन वर्ब होता है, मैंने आपको बताया ना, जो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब होता है उसका क्या मोड है, उसका मूड को डोनेट करते हैं। स्पेशली ये मूड को, जैसे कि किस मूड में जो एक्शन है वो किया जा रहा है। ओके तो ये क्या क्या चीज़ें डोनेट करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी डोनेट कर सकते हैं, ओके या फिर कंपल्सन डोनेट कर सकते हैं, नेसेसिटी डोनेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मॉडल वर्ब्स के हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर एट्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स। अब आपने ये देख लिया होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा कि इफ़ वी say that total we have 4 forms of verb. One is transitive, other is intransitive, okay, but if we talk about the broader classification की broadly यह जो है दो टाइप में है। पहले तो एक तो होता है मेन वर्ब, जिसे आप प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है जो ऑक्सिलरीज है, दूसरा है मॉडल्स है। अब ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, जो आपके टेंसेस में प्रयोग होते हैं, है ना, और जो मॉडल्स होते हैं वो आपके मूड को डिनोट करते हैं, जैसे आपका मे, माइट, कैन, कुड, ओके ये सारे जो हैं ये मॉडल्स कहलाते हैं। और मेन वर्ब तो मेन वर्ब होता है, उसमें उसका फर्दर क्लासिफिकेशन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हुआ है, और वो किस बेसिस पे हुआ है कि वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है या फिर नहीं लेता है। अगर ऑब्जेक्ट लेता है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं लेता है तो इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे आपके वर्ब्स की जो मेन वर्ब होता है उसकी कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे उसके कुछ रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, टोटल तो इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 फॉर्म्स दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। अगर मैं आपके इसके फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म्स की बात करूँ तो इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो इसकी आईएनजी फॉर्म होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो इसका यस या ईएस फॉर्म होता है। ओके जब मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी तो ये आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके क्योंकि इसमें वर्ब्स के फॉर्म्स की बहुत ही हेल्प होगी, इसलिए आप इस टॉपिक को बार बार देख लें, और अब फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हो। ओके सो डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दैट व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब। अवेक, ओके ये एक्शन को डोनेट करता है, जगना, इट इज़ एन एक्टिविटी। अवोक इसका सेकेंड फॉर्म है, जिसको हम इसकी पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म इसकी अवेकन, जिसको हम इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ओके और फोर्थ फॉर्म मैंने बताया, जैसे इसका आईएनजी ऐड कर देंगे, और फिफ्थ फॉर्म जो है इसमें यस आर यस ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके के सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। वी ऑल द मेन वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स। ओके नाउ I hope student that you would have enjoyed studying verbs, and you would have understood what is the different kinds of verb. Now we shall move further in this very video and understand about what is an adverb and the classification of adverb. Okay, so let's read.
So first of all, we shall understand and we shall ask a question to ourselves that what is an adverb? What is an adverb? So an adverb tells how, when and where an action takes place. क्या बताता है कि कैसे, कहाँ और कब कोई एक्शन हुआ है. जो अभी आपने देखा, एक्शन को कौन बताता है? वर्ब बताता है. आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हो, है ना. किसके बारे में? वर्ड. और वर्ड के कितने टाइप्स होते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेम बताते हैं, वो नाउन होते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने का काम करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को डोनेट करते हैं या स्टेट किसी दशा को डोनेट करते हैं, उसे आपने वर्ब कहा. और अब आप कैसे वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हो? आप कुछ ऐसे वर्ड के बारे में पढ़ रहे हो जो ये बताते हैं किसके? वो एक्शन के बारे में ही बताते हैं, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि एक्शन के बारे में बताते हैं. और क्या बताते हैं एक्शन के बारे में? एक्शन मीन्स वर्ब. वर्ब के बारे में क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि कहाँ, कैसे, कहाँ और कब एक्शन हुआ है. ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो. अगर आपको डिफाइन करना है एडवर्ब को, देन यू कैन वेरी इजीली डिफाइन इट इन दिस वे दैट एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. क्या करता है एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है. मॉडिफाई मीन्स उसे डिस्क्राइब करता है. सम एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग ly टू द एंड आर एन एडजेक्टिव. कुछ एडवर्ब्स आप बहुत ईजिली बना सकते हो, जैसे कि आप जो है कि किसी जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके ही लास्ट में ly ऐड करके आप उसे क्या बना लेते हैं? एडवर्ब बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रिस्क, ये क्या है? एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है. आपने ly ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. करेज क्या है? या करेजियस क्या है? या आपका एडजेक्टिव है. करेज तो नाउन हो जाएगा. ओके, करेजियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और आपने ly ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारे एडजेक्टिव में आप ly ऐड करके इसको आप जो है बना सकते हैं एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे एडवर्ब्स के बारे में. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यू कैन सी कि एडवर्ब्स होता है किन किन क्वेश्चंस का आंसर देता है. जैसे ये हाउ, आप क्वेश्चन करोगे सेंटेंस में, जैसे इफ़ यू हैव अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक सेंटेंस है एंड समवन हैज़ टोल्ड यू टू फाइंड आउट एडवर्ब फ्रॉम दिस सेंटेंस, कि आप इस सेंटेंस से एडवर्ब को ढूंढ के दिखाओ. तो आप कौन कौन से वर्ड से क्वेश्चन करोगे तो आपको एडवर्ब मिलेगा. जैसे आप हाउ से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हाउ मच से क्वेश्चन कर सकते हैं, इन वॉट कंडीशन से क्वेश्चन करेंगे, वाई, वेयर, व्हेन. तो ये सारे जो 6 क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, हाउ मच, इन वॉट कंडीशन, वाई, वेयर, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर में जो वर्ड मिलता है वही वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है. ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ एडवर्ब्स के जो व्हेन से क्वेश्चन करने पे हमें मिलता है. तो वो व्हेन से क्वेश्चन करने पर मिलने वाले आंसर्स के रूप में जो एडवर्ब मिलता है, उस ऐसे एडवर्ब्स के कुछ एग्जांपल हैं. जैसे सून, अर्ली, टुमारो, स्टिल, डेली. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इन सभी वर्ड्स में लास्ट में ly नहीं है. मैंने कहा था कि कुछ ही ऐसे एडवर्ब हैं जो ly ऐड करके बनाए जाते हैं, है ना. कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं इसके. तो ये आपके ऐसे एडवर्ब हो गए, ठीक है, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम ही नहीं कह सकते हो आप, जो कि डोनेट करते हैं किसको? व्हेन से क्वेश्चन करने पर आंसर मिलते हैं. और कुछ आपके पास जैसे हैं एडवर्ब ऑफ लोकेशन, है ना, कि जो प्लेस, लोकेशन मीन्स प्लेस को डोनेट करने वाले, जैसे वेयर से क्वेश्चन करने पर मिलेंगे आंसर. जैसे अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, इनसाइड, अवे, ये सब भी एडवर्ब के एग्जांपल हैं. और कैसे? एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं सैडली, क्वाइटली, क्विकली, नाइसली. ओके, तो ये जो एडवर्ब है ये इन सारे बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है फर्दर. यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्ब को समझने के लिए. जैसे यस, अ रैबिट हॉप्स हरीडली.
ओके आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आपने इसका विकल्प भी ऐड कर दिया है। जैसे एक एडवर्ब, एक ही सेम वर्ब के लिए आपने दूसरे एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, हरीडली और क्विकली को, तो भी सेंटेंस बनेगा अ रैबिट हॉप्स। अब आपने एक वर्ड ऐड कर दिया जैसे हरीडली, तो ये आपने इसको डिस्क्राइब करने के लिए, हॉप्स को डिस्क्राइब करने के लिए, हॉप्स क्या है, वर्ब है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने हरीडली ऐड कर दिया। अब हरीडली को रिमूव करके आप इसकी जगह क्विकली ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। ओके तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज होता है एडवर्ब में। अ डॉग बार्क्स लाउडली, अ डॉग बार्क्स एक्साइटेडली। ओके तो ऐसे बहुत सारे, मैं आपको लास्ट में एक वर्क दूंगी कि ऐसे बहुत सारे एडवर्ब हैं जिसके सब्स्टिट्यूट ढूंढे जा सकते हैं, जिसे आप ढूंढोगे एज अ वर्क। ओके जेन सिंग्स स्वीटली, जेन सिंग्स ब्यूटिफुली, बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग। ओके अब जो एडजेक्टिव और जो एडवर्ब है उनमें क्या डिफरेंस होता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सॉरी, so dear student, you can see what is difference between an adjective and an adverb. John has a loud voice. ओके अब यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आप एडजेक्टिव से फिर एडवर्ब बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन जो कि एक नाउन है, हैज़ क्या है, वर्ब है। ओके और एक आर्टिकल है, वॉइस क्या है, एक नाउन है। अब अगर लाउड को आपको बताना है व्हाट इज़ इट ऑन बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस टाइप का वर्ड है ये, तो आप कहोगे ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वॉइस को डिस्क्राइब कर रहा है। वॉइस क्या है, एक नाउन है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव कहते हो, न कि आप एडवर्ब। और एडवर्ब किसे कहते हो, जो वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे। अब यहाँ पे जो वॉइस है, वॉइस क्या है, वॉइस एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी वॉइस कैसी है जॉन की, वो लाउड है, तो ये एक नाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉन स्पीक्स लाउडली। अब सेम एडजेक्टिव को फिर एल वाई ऐड करके एडवर्ब में चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे ये स्पीक्स को डिस्क्राइब कर रहा है लाउडली, कि वो कैसे बोलता है ना, तो उसकी एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके now moving further, we shall understand the kinds of adverb. So we have 4 kinds of adverb broadly, you can see. So an adverb can be broken down into 4 different categories. Okay you can teach and practice the different types of adverb one by one to help your okay class digest the information showing them example of grammars in use. So first of all we have adverbs of manner. सो एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने बताया था जो हाउ से क्वेश्चन करने पे आंसर मिलेगा वो क्या बताएगा, वो मैनर बताएगा। ओके टेल यू इन व्हाट मैनर और हाउ समथिंग हैपन, कोई कार्य कैसे हुआ है, कोई एक्शन जो है, वर्ब हुआ है, वो कैसे हुआ है, उसका मैनर बताएगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। एग्जाम्पल है द म्यूजिक प्लेड लाउडली एंड द बॉय डांस एनर्जेटिकली। ओके यहाँ पे जो प्लेड और डांस्ड ये दोनों वर्ब हैं, और ये दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे 2 एडवर्ब यूज़ हुए हैं। जैसे प्लेड को लाउडली, कि किस तरीके से म्यूज़िक बज रहा था, ओके और वो डांस कैसे कर रहा था, एनर्जी के साथ। ओके तो ये दोनों वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसके मैनर को बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके you can also place adverb of manner at the beginning of the sentence, okay और बिफोर द वर्ब। तो आपको अगर प्लेस जाननी है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर को आप सेंटेंस में कहाँ रखते हो, तो आप सेंटेंस के या तो इसको वर्ब के बाद रख सकते हो या वर्ब के पहले भी रख सकते हो एडवर्ब ऑफ मैनर को, और या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी रख सकते हो। जैसे साइलेंटली द चिल्ड्रन वॉच्ड एज द बियर स्टेटली मूव्ड पास दैम। ओके जैसे कि बच्चों ने चुपचाप से देखा, ठीक है ना, जिस समय जो बियर है वो उनके पास से होकर गुजरा। ओके तो ये पोजीशन को शो कर रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को आप कहाँ कहाँ रख सकते हो। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब्स का एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है कि कितनी मात्रा में कोई एक्शन हुआ है ना, एट हाउ मच और एट व्हाट डिग्री द एक्शन हैपेंड। ओके जैसे एग्जाम्पल है ही सर्व द पोटैटोज जनरसली बट ऑफर्ड स्प्राउट स्पैरेंजिंगली। ओके या फिर देखिए यहाँ पे तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव तीनों को ही डिस्क्राइब करता है ना, जैसे कि एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो सी वॉज सिग्निफिकेंटली टॉलर दैन हिम बट
वॉज हैप्पी इनफ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टॉलर क्या है, एडजेक्टिव है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। और अब ये टॉलर को भी फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है ये सिग्निफिकेंटली, जो कि एक एडवर्ब है। ओके, और ये उसकी मात्रा को बता रहा है कि हाउ मच, एट व्हाट एक्सटेंट। ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी कि कैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो न केवल सिर्फ एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है केवल वर्ब को डिस्क्राइब करता है, बल्कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे यहाँ पे ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, द डॉग एट वेरी क्विकली। ओके, डॉग ने कैसे खाया, बहुत ही तेज़ी के साथ। यहाँ पे क्विकली आपका दे है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, एट को, कि कैसे खाया। ओके, और तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। और फिर एडवर्ब को भी यहाँ पे वेरी मॉडिफाई कर रहा है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, जो कि यहाँ पे क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, क्योंकि ये एड को डिस्क्राइब कर रहा है। और वेरी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि यहाँ पे एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। ओके, सो वाइल द कैट एट मच टू स्लोली। ओके, सो टू भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, स्लोली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। स्लोली भी यहाँ एट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, टू जो है स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है। ठीक है, जो कौन से वर्ड से, कौन से क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन करने पर मिलेगा आंसर, दैट वेयर। ओके, तो एग्जाम्पल है इसके, देयर वर स्ट्रेंजर्स एवरीवेयर सो ही प्लेड नियर बाय। ओके, तो दो एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के यहाँ पे, एवरीवेयर एंड नियर बाय। ओके, यहाँ पे ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, एवरीवेयर जो है कि वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, और प्लेट नियर बाय जो है प्लेट को डिस्क्राइब कर रहा है। और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, अब इसकी लोकेशन बता रहा है, पोजीशन की। एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो इसको जो है या तो आप वर्ब के बाद यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में। सी पुट द फोन, फोन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद डाउन को उसके ऑब्जेक्ट के बाद रखा गया है। ओके, एंड वेंट टू मीट हर फ्रेंड्स देयर, यहाँ पे भी हर फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है देयर को यूज़ किया गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप वर्ब के जस्ट बाद या ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ कर सकते हो। फोर्थ टाइप है एडवर्ब का, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि व्हेन से क्वेश्चन करने पर आंसर मिलता है। ओके, एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ टाइम का, माई फ्लाइट्स अराइव्स टुमारो, लेट्स टॉक अबाउट देन। ओके, तो आप बता रहे हो शेड्यूल्स की, आपकी फ़्लाइट कल आ रही है, तो उसके बारे में तभी बात करते हैं। ओके, तो ये आपका देन जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, टुमारो भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये किसके बाद यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये अराइव्स जो कि वर्ब्स के जस्ट बाद यूज़ हुआ है। सो दे कुड आल्सो टेल यू हाउ ऑफन। अब एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रिक्वेंसी को भी बता सकता है, या फिर इसको आप इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ओके, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार, कब नहीं बल्कि कितनी बार। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। ओके, तो इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। द बस कम आर्ली, आर्ली मतलब कि एक घंटे पे, प्रत्येक एक घंटे पर आती है। सो द वीमेन गोज इन टू टाउन रेगुलरली, ये भी एक आपकी हाउ ऑफन मतलब ये इसकी फ्रिक्वेंसी को डोनेट कर रहा है। ओके, एन एक्सेप्शन इज द एडवर्ब स्टिल विच कम्स बिफोर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। लाइक स्टिल जो है एक ऐसा एक्सेप्शन है एडवर्ब ऑफ टाइम का, जो सेंटेंस में जो है वर्ब से पहले यूज होता है। अदरवाइज एडवर्ब ऑफ टाइम जो है कभी भी वो एडवर्ब से पहले, वर्ब से पहले नहीं यूज होता है, केवल स्टिल को छोड़कर। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू वर्ब, एडवर्ब एंड देयर काइंड्स, and I hope that you would have enjoyed this video and have cleared your doubt about these topics. If you still have left some doubt regarding these topics, you can send your doubts in the comment box. You can also send you can also send your suggestion, what improvement do you want in my videos. I will also try to improve it in future. So once again, at the end I would like to make you request that go on the subscribe button and please press it, so that I can be encouraged to make more nice videos in future and you can get benefited through it, okay, by getting the next videos. So thank you, have a nice day all of you.